Okay, so today's session is all about why Indian market are witnessing overselling, or what we can see a correction, a bigger correction. Why it is looking like an extended correction, or why FI are selling in Indian market. What must be there are some reasons. So we will look it into one by one pictures. First of all, let me tell you there are a couple of events in backdrop of Indian history in Indian market history happened. Like Adani Hindenburg Row, first Indian election, you can see these candles, this fall, the Indian election results day. Before that, there was some kind of news also. So there are a lot of things. So what is happening in currently market? If you see, there are several results like increase in taxes. In last budget, you can see there is an increase in capital gain tax from market. And you can see SEBI has regulating small cap and mid cap overly. If you see there are many ESM, ASM and security graded rules have come in the market. And one more thing that there was a fear of recessions. And you can see the global leaders came together and many of the thought that this could be solved by rate hikes. So they have hiked the rates of interest rates, and it led to inflation. And why they hiked the rate? Because they wanted to control the money supply in the market and reduce the inflation. But it has not happened actually. Currently, we are seeing even US has reduced the back to back two times rates. Still, you can see there is a high inflation. So there are several reasons behind this. So we will look at into one by one. If you see, first of all, major problem why Indian market is witnessing heavy sell off. If you see, small cap is there. If you see, Nifty is there. Let's analyze Nifty. If you see, this was the rally. This was the event. You can see the big event or biggest candle in Indian market. If you see, this was the election candle, election day result candle on 6th June. After that, what you can see, our market witnessed a bullish move. And ये जो if you can see this mark, let's go to activity. This was the last buying point of. This was the last point where FI have bought heavily. If you see here on 20 September 2024 or this year, just 2 months back, what you can see 14,000 crore buying. It was the last buying, biggest buying. If you see from FI, this is FI data daily on basis. After that, there is no buying at all. If you see from 27 September, if you see the 27 September chart of Nifty, if you see 27 September day from the day that Nifty top created, that day onwards, they have not bought a single day. See here, this 27, this is the 27 September. That day Nifty has made its top and see the FII data. From that day onwards, that day they sold 1200 crore, the next day 10,000 crore, next day 5,000 crore, 15,000 crore, and so on. There is no buying. Means there is always happens buying and selling, but it is called as net. Is net buying or net selling is there. If you can see, there is no stopping from them. What led to this? Why? There are some emerging markets. So if you see FII ownership hits 12 years low and dips below 16%. It is a 12-year low. So कोविड के टाइम पे भी इतना लो नहीं हुआ था, उतना लो अभी हो चुका है. इन द कोविड टाइम्स इट वाज नॉट दैट मच लो. उससे भी ज्यादा लो अभी हो चुका है. So there must be reason, there must be inflow in somewhere. So the first of all the flow was there. Flow कहाँ पे हुआ? इंडियन मार्केट में से जाके पैसा the market, the money has gone to Taiwan, Philippines, Japan, recorded highest inflows.
And the second inflow was in, if you see, the safer investment like bonds, and gold. If you can see, gold has been hitting all-time high. Gold has been hitting new highs. So they are tending to go towards safer investment. Why? If you look at the global P, if you look at the global P data, देखो इंडियन P कहाँ पे स्टैंड करता है? If you look at the global P ratio by country, means price to earning or valuation, everything sells by a value. So if you look at the India graph, it is currently showing expensive. So currently Indian market is at its peak expensiveness. If you say the most expensive market in currently in the world is US market, but the second most expensive market in the world is India. If you are seeing this, and what is indicating the current trend of Indian market is negative. Red means negative, blue means positive. You can see that after Donald Trump became president of United States, you can see that US market hit all-time high. And from that day onwards, I cannot call it, but from September onwards, we are not seeing any buying from FII. If you see, I already told you, I already shown you how the top got created. From 27 September, the day from FI have started selling and not stopped till now. 27 September को ही हमारा टॉप क्रिएट हुआ था, उस दिन से सबसे ज्यादा सेलिंग आ रही है. If we look at that monthly selling data, if we look at that monthly selling data, you can see October witnessed the highest selling. If we look at the monthly selling data, October witnessed highest selling. And if we look at yearly selling data of FI, what you can say in COVID, after COVID, जितना कोविड के टाइम पे हुआ था 2,78,000 करोड़ एंड देन 2,64,000 करोड़, स्टिल देर इज 1 month left, still there is 1 month left. So they are net sellers from last 4 years. This is impacting quite a lot currently. And what is happening currently? If you see, this is the highest ever thing you can see. The currently you can see that today एक न्यूज आई थी आज की, SIP hits all time high record. 25,000 करोड़ की SIP आ गई एक मंथ में. So institutional और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग हेवीली. देखो इनका सबसे ज्यादा ग्राफ है, जितना भी FI सेल कर रहे हैं ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग दिस. इफ यू सी मंथली पर भी देख सकते हो 1 लाख करोड़ लास्ट मंथ से FI DI हैज बॉट दिस. So currently what we are seeing, Indian markets are on expensive ratio and higher terms. That's why they are looking for some cheaper options like investing in gold, because gold is giving quite safer returns currently, and strengthening of US dollar. जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आए उस that from that time onwards, you can see that US dollar is strengthening. If you see the US dollar, it is strengthening. You can see it is making quite a vertical move from last few days. So it is one of the reason, and one of the reason what you are saying, Trump is trying to legalize or trying to give his support to crypto investors. That's why if you see, you can see that crypto market is doing quite well. See the rally in crypto market, it has hit new all-time highs. Crypto market, and you can see many small cryptos are giving 100% returns over a week. लास्ट वीक में 100%, 200%, 400% किसी क्रिप्टोज में आए हैं. सो दैट इज द पॉइंट, वेयर इज द मनी गोइंग, बिकॉज इफ यू सी द दिस इज द फर्स्ट टाइम अ मैन विदाउट सिटिंग इन एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्शन में किसी बिना बैठते ही एक इलोन मस्क जैसे एक इंसान ने सबसे पावरफुल इंसान बोल सकते हैं हम आफ्टर यूएस डोनाल्ड ट्रम्प. See, a capitalist country is doing its capitalist work. US capitalist country है, capitalist work कर रही है, promoting its business, promoting its own self interest. To what? अभी क्या होगा? What will happen after US Donald Trump will come? He will put more tariffs. And Donald Trump की और एक चीज है, I am telling you that what उसके इसके इंटरव्यू में उसने कहा था कि
वो अमेरिकन से इनकम टैक्स नहीं लेगा। वो कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद उसकी थिंकिंग है कि वो इनकम टैक्स बंद करके जो भी टैक्स अमेरिका भी खर्च कर रहा है उनके इसके ऊपर, उनकी कंट्री को ऊपर लेके जाने के लिए, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोस थिंग, दे दे विल अर्न दैट मनी थ्रू टैरिफ्स। उससे क्या हो जाएगा कि ग्लोबली प्रोडक्ट्स एंड चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट पे। एंड जैसे ट्रम्प का क्या है, वो क्लाइमेट की चीजें भी नहीं मानता। यू कैन सी दैट वारी एंड सम रिन्यूएबल सेक्टर स्टॉक्स हैज फॉलन आफ्टर ट्रम्प्स विनिंग, बिकॉज ही टोल्ड दैट ही विल विथड्रॉ फ्रॉम क्लाइमेट क्लाइमेट की जो ट्रीटीज थी ना उसमें से वो विड्रॉ करने वाला है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉशियस थिंग। कुछ चीजें अच्छी है ट्रम्प आने के से इंडिया के लिए, कुछ चीजें बहुत बुरी भी है। H1B वीजा भी वो भी बुरा होगा। सो क्या हो रहा है कि ये जो ग्लोबल अभी नए चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं वर्ल्ड में, जैसे कि क्रिप्टो के लिए यूएस का सपोर्ट आना, वन चैलेंज। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद यूएस डॉलर में थोड़ा सा बिलीफ होना, belief Anna. So that is the one of the major thing. These are the two things less. And you can see Indian markets are overvalued also. Means overvalued means in the sense the way they are going, it's looking like the over market. If you see here, there are a couple of other reasons also. So one more thing, increase in taxes. The recent BJP government increased the taxes in Indian economy. कंपनी के लिए रिड्यूस कर दिया टैक्स, बट increased capital gain tax, and there are a lot of stricter regulations from सेबी। आप देख रहे हो सेबी के रेगुलेशंस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। यू कैन सी सेबी रेगुलेशंस आर क्वाइट hectic, like they are doing some things like ASM categories, ESM. So that's why it is like in way they are saying, सेबी बोल रहे हैं कि we are protecting the retailers, but actually it is impacting highly to retailers. If you see, I don't know what they are seeing or what they, but there are couple of people sitting, they have higher intellectuals than us, so we can say। सो अब ये बात हुई ग्लोबलिटी की, ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल चीजों की। जैसे मैंने बोला कि आपको FIDI एक्टिविटी दिखाई, हमने ग्लोबल पी रेशियो देखा, वी हैव सीन दैट यूएस मार्केट इज, इवन सी दिस चाइनीज मार्केट इज एट फेयर वैल्यूएशन। एंड रिसेंट टाइम में चाइना में बहुत बड़ा एक मनी सप्लाई हुआ। आफ्टर दैट a lot of companies benefited, and you can see that Hang Seng Index and some index were going up, and a lot of money is also going in China now। चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, यहाँ पे इन्फ्लो बहुत बढ़ गए हैं। एंड इंडिया, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा FII सीन हुए, यहाँ से उधर मनी का आउटफ्लो हुआ है। सो देयर इज अ मनी शिफ्टिंग करंटली, एंड a cooling effect is also there. If you see, Indian market was heavily run off, and there should be a cooling effect, and this cooling effect is taking place now. So there are several results। लास्ट टाइम अदानी का रो था, उस वजह से हम साइडवेज मोमेंटम गए, बहुत बड़ा फॉल आया। सो वाई अदानी के ऊपर इतना मार्केट क्यों डिपेंडेंट था? इफ यू सी द स्ट्रक्चर दैट अदानी came into, as BJP government came into power, and Adani rose in Indian market and risen to world's top richest person। अगर आप आज की एक स्टेटमेंट भी देखो ना इंडियन पॉलिटिशियंस की, अब देखो स्टेटमेंट आपको, अगर इंडियन पॉलिटिशियन और महाराष्ट्र के इलेक्शन अगर फॉलो करते हो आप, सो होप यू नो अ पॉइंट वेर टुडे अजित पवार ऑफ एनसीपी told to Ajit Pawar of NCP told to media that there was a meeting between NCP and BJP, means Sharad Pawar and BJP and Amit Shah। ये मीटिंग पॉलिटिकल मीटिंग थी ना, तो व्हाई दिस मीटिंग हैज हैपेंड इन द हाउस ऑफ गौतम अदानी? ये अदानी के घर पे होती मीटिंग, तो कुछ तो रिलेशन होगा बीजेपी का अदानी का। हम उसको रिलेट नहीं कर सकता। और ये भी देख सकते हो बीजेपी का, जैसे ही सत्ता आती है अदानी के स्टॉक्स में एक बढ़ोतरी आते हैं, बीजेपी अगर गिर जाए तो अदानी के स्टॉक्स में गिरावट आती है। सो देयर इज अ बिग रिलेशन। सो अदानी हिंदरबर्ग के ड्रॉ जब भी आया था, जब भी इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी गिर रही थी, दैट वाज
that was fall in market also. There are many things related to Indian market. But currently अगर हम टेक्निकल पे जाए, we look at the technicals. These are a lot of things that are fundamentals और वैल्यूएशन के बेसिस पे और ग्लोबल इवेंट्स. बट नाउ आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स. तो टेक्निकल पे देखो हम हायर हाइज बनाना बंद कर दिए थे. वेयर वी वेर जस्ट, देखो निफ्टी एक हाई बना चुका था, बट इफ यू कंपेयर दिस चार्ट विथ निफ्टी, लेट मी कंपेयर दिस चार्ट विथ निफ्टी, व्हाट यू विल सी. So there was a time in Indian market where large cap is moving quite well and small cap was reducing और स्मॉल कैप was saying साइड में. देखो यहाँ पे देखो ये जो ब्रेकआउट आया था 12 सितंबर को, सेम थिंग स्मॉल कैप में देखो 12 सितंबर को. 12 सितंबर द स्मॉल कैप वेंट हियर, यहीं पे था. दिस स्मॉल कैप हैज नॉट ब्रोकन द बॉक्स, बट निफ्टी 50 मेड न्यू हाइस एंड वेंट टिल 26,000. देखो और एक मेंटेलिटी भी होती है पीपल्स की. द पीपल्स मेंटेलिटी करंटली, जब यहाँ पे मार्केट था, एवरीवन वाज ट्राइंग टू कन्विंस पीपल. रिसर्च रिपोर्ट सेइंग, इन्वेस्टर, ट्विटर, एवरीवेयर पीपल आर सेइंग मार्केट इज गोइंग टू 30,000. बिलीव इन इंडियन स्टोरी. बट जैसे मार्केट 3,000 पॉइंट गिर जाता है तो पीपल आर सेइंग 12,000 इज कमिंग. सो इन्वेस्टर मेंटेलिटी क्या होती है कि जो करंट प्राइसेस को देख के, उसको देखते ही वो डिसीजन लेते हैं. अगर कंपेयर किया जाए तो आप अगेन मैं इसको हटा दूंगा एंड देखेंगे हम क्या हो सकता है अभी, कहाँ पे जाकर ये फॉल रुक सकता है, वेयर दिस फॉल कैन स्टॉप. So there is a crucial support in the sense, if you see यहाँ पे मार्केट क्वाइट साइडवेज था. दिस वाज द मेजर रेजिस्टेंस आल्सो. ये जो जोन है मेजर रेजिस्टेंस जोन भी था. इलेक्शन था, देयर आर मेजर पॉइंट्स. फेब्रुआरी में रिसेशन के फियर था, inflation were all time high, there was a quite fear. So there are a couple of resistances and important point of, देखो अभी कल का जो डे है, नेक्स्ट टुमारो डे इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. कल अगर मार्केट यहां से करेक्ट होकर इसको टच करेगा, देखो यहां पे देखो मार्केट में क्या हुआ था. अब अगर प्रीवियस एनालिसिस के, इफ वी डू प्रीवियस एनालिसिस, whenever market has fallen sharply, market has recovered sharply also. देखो शार्प फॉल हुआ 80%, 70% रिकॉर्ड. शार्प फॉल 100% रिकॉर्ड. शार्प फॉल 70-80% रिकॉर्ड. शार्प फॉल 80%, नो 100% रिकॉर्ड. 100% रिकॉर्ड. अभी क्या हो रहा है लास्ट 4 डेज से, लास्ट 4 डेज से यू कैन सी डायरेक्ट फॉल. डायरेक्ट फॉल. वन मोर कैंडल इज पेंडिंग, मे बी टुमारो और आज की भी कैंडल हो सकती है. मे बी वी विल टच दिस जोन. ये लास्ट जोन है. अभी इससे नीचे गया तो कुछ है ही नहीं फिर, बट नहीं जाएगा उतना भी. इतना तो इंडियन मार्केट में भरोसा रखो. सो दिस इज द टुमारो इज विल बी लास्ट डे. देयर विल बी रिकवरी टिल हेयर. यहां तक तो अगेन रिकवरी आ सकती है, तो अगेन वी विल सी 100% रिकवरी. I cannot predict 100%, but I am thinking like this may happen because till date this has happened. Okay, so based on historical price momentum we can say this or we can forecast this. So this is the thing in small cap. If we look at nifty, इफ यू लुक एट निफ्टी, निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा फॉल आ सकता है. स्मॉल कैप में ऑलरेडी फॉल हो चुका है. निफ्टी में कहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन रहा है, दैट इज हियर. अब ये पूरा वीक जाएगा. आज तो ट्यूसडे है, सो दिस विल बी क्रूशियल. एंड मैंने 1 नवंबर को आपको बताया भी था कि आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिबाउंड फ्रॉम मिड ऑफ नवंबर. दिसंबर और जनवरी फरवरी तक जब क्या होता है ना, एक इवेंट चाहिए मार्केट. अभी मार्केट में करेक्शन आ रहा है, सो अगेन मार्केट विल बी पंप्ड फॉर फेब. फेब में क्या है, अगेन देर इज बजट. फेब में क्या है, बजट है. बजट है तो बजट में अनाउंसमेंट होगी, पब्लिक सेक्टर में अगर फंड आएगा, रेलवेज में आएंगे,
तो मार्केट लाइकली टू गेट पंप्ड अगेन फॉर दिस इवेंट्स। ये हो सकता है ना, अभी इलेक्शन तो नहीं है बड़े कोई। अभी इंडियन एक तो था यूएस का इलेक्शन, आफ्टर इन महाराष्ट्र इलेक्शन। एंड वन मोर थिंग, मार्केट इज कंसर्न अबाउट महाराष्ट्र इलेक्शन आल्सो, बिकॉज महाराष्ट्र की अगर देखा जाए तो 1 ट्रिलियन के पास इकोनॉमी जा रही है। सो इट इज हाईएस्ट बेनिफिशियर टू इंडियन ग्रोथ स्टोरी। इफ बीजेपी लूज इन महाराष्ट्र, इट विल गेट impacted highly. So that is one more concern. Maharashtra's election is on 20, तो 22-25 के बाद नहीं तो एंड ऑफ दिस नवंबर वी विल सी थोड़ा सा सेटल डाउन हो सकता है जस्ट। यहाँ पे हम डब्ल्यू पैटर्न बन के दोबारा मार्केट रिबाउंड हो सकता है, और वी कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट टिल दिसंबर, टिल मिड दिसंबर, ज्यादा से ज्यादा मिड दिसंबर तक होगा। उसके बाद मार्केट में रिवाइवल आ सकता है, अगेन वी कैन हेड टुवर्ड्स हाइस। These are the things projected. And if you look at events and dates, again, if you look at the fear index today, the fear market mood index, if you see from 43 to 32, from it went. If you see that market is likely to visit tomorrow or this week in extreme fear zone, and extreme fear zone is good to add some quality stocks. If you look at the currently, there are many stocks I have given, and but currently only one stock which is looking good to me. If you look at here, 1 minute, these trend lines were drawn on other time frames. If you see here, what I am seeing Dev IT, Dev IT. If you see the spike in the volume here, this is accumulation sign. लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे बोला था कि ब्रेकआउट सून कैंडिडेट, यहाँ पे मैंने बोला था ब्रेकआउट सून कैंडिडेट है, उसके बाद इट हैज ट्रैवल अ लॉट। सॉरी, लास्ट टाइम यहाँ पे बोला था, शायद यहाँ पे बोला था, सॉरी, ऑन जुलाई। जुलाई के बाद अगेन अगेन रिबाउंड हुआ, अगेन रिबाउंड हुआ। अभी आफ्टर द इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट हियर, आई एम थिंकिंग इट कैन मेक क्वाइट हाइस। लाइक सी, दिस इज आईटी स्टॉक्स वी हैव फाउंड साइनस टेक आल्सो। साइनस टेक भी मैंने 199 पे बोला था, ऑपरेटर ट्रेस हुए हैं फ्रॉम दिस लेवल 199। यहाँ पे जब यहाँ पे इनसाइड कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया था, तब मैंने बोला था कि यहाँ पे साइनस टिक जा सकता है। तो उसके बाद साइनस टिक वाज मेकिंग हायर हाइज, एंड अभी 6s हो चुका है। हमने वेबसोल भी देखा। लेकिन हाँ, वन मोर थिंग आई विल से, वेबसोल मैंने 144 का आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे बोला था मैं आपको, जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम के साथ। आफ्टर दैट इसकी जो फेयर वैल्यू है ना, इस वेबसोल के रिजल्ट के हिसाब से, इस फेयर वैल्यू इज करंटली 2400, स्टिल अ लॉट मोर टू। अगर कोई करेक्शन आएगा, ये 1000 के पास मिलेगा ना, तो उसको डेफिनेटली उठा लो वेबसोल को। वेबसोल, डे वाईटी एंड सम ऑफ आवर होल्डिंग, अभी जो हमारे पास करंटली होल्डिंग में है, जैसे कि मनबा, a lot of stocks going hitting stop loss। देखो अभी क्या हो रहा है कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट फॉल्ट, किसका फॉल्ट है ढूंढने से ये वजह आप देखो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्टॉक वीक है। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो होल्ड कर सकते हो, रिवाइव हो जाएगा। मनवा देखो, देखो सुबह मैं बोल रहा था कि रिकवर होना जाना चाहिए, इट हैज रिकवर्ड फुल्ली प्रीवियस डे का फॉल, अगेन गिर चुका है। 140 के नीचे आपको निकल जाना है, नहीं रुकना है। एक अच्छा स्टॉक्स था, अगेन ये सपोर्ट पे अगेन आ चुका है। अगर यहाँ से कल रिवाइव हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको निकल जाना है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे। नहीं हुए तो यहाँ पे निकल जाओ। केएनआर कंस्ट्रक्शन एंट्री प्राइस 600 619, टुडे मैंने बोला था आपको एग्जिट हो जाने हैं। ये तो अगेन मैसेज डाला था, अगर होल्ड कर सकते हो आप स्टॉक के साथ होल्ड करो, क्योंकि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ बुलिश, हाईली बुलिश। ये भी बुलिश है। अगेन वन मोर सेटअप जो कि मैंने फ्री ग्रुप में दिया था बट प्रीमियम ग्रुप में नहीं दिया, दैट वाज ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। बट हमने बीटीएस उठा लिया था यहाँ पे रेड कैंडल में, उसके बाद बड़ा मूव आया था। ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट पॉइंट। वन मोर स्टॉक दैट इज लुकिंग गुड फॉर रिवर्सल इज विष्णु केमिकल्स। विष्णु केमिकल्स में ये रन आया था एंड टोटल रन आउट हो चुका है, टोटल फॉल आ चुका है। तो अगेन इट मे रिवाइव विथ फास्ट। वेल्थ इज वेरी गुड स्टॉक,
अगेन इट हैज केम टू वेरी गुड लेवल, एक्यूमुलेटिंग लेवल। यहाँ पे मुझे लगा था कि अगेन यहाँ बैक टू बैक पर सर्किट्स हो गए, बट इन द सेंस मार्केट में वीकनेस बहुत ज्यादा थी, सो इट ऑल्सो गॉट पनिश्ड एंड मेनी ऑफ माई स्टॉक्स होल्डिंग विच आई एम पर्सनली होल्डिंग गॉट पनिश्ड। देखो आज मैंने एग्जिट दिया था, टाइम पे बोला था आपको 42.60 के नीचे जाएगा तो एग्जिट कर लेना। सो दैट ब्रेक डाउन टू दिस ट्रेन लाइन, उसके बाद एक बड़ा फॉल आ चुका है। एक्सपेक्टेशन जो थी वो थी, अलग बात है। एंड सी, एल्पोर इंटरनेशनल ने जो 25% का गेन दिया था, हमने यहाँ पे मैंने दिया था 101 पे, वहां से इसने 28% का गेन दिया। अगेन दिस अपर बैंड से ये निकल गया एंड टोटल फॉल आ चुका है। टोटल जो प्रॉफिट बनना था, टोटल इवेपोरेट हो चुका है। जिन्होंने 4-5 दिन में जिनको 28% का गेन मिला उन्होंने बुक किया, वो ठीक है। नहीं बुक किया तो दिस इज अ गुड स्टॉक, इट कैन रिबाउंड अगेन। Okay, if you look at overall things, so this was the all thing. First, I have covered you on global analysis, the what global factors leading to Indian market for like high global PE of Indian market, FII selling continuously. Two factors, and one more factor is the SEBI regulations in Indian market and increase in taxes and overvaluing of Indian market, high recession fears and rate hikes. So globally, there are a couple of challenges and very good valuations or very good interesting facts about that. What I'm trying to tell, emerging markets are happening. Like China is emerging now after COVID. चाइना में बहुत बड़ा फॉल आया था कोविड में, बिकॉज कोविड इमर्ज फ्रॉम चाइना। आफ्टर दैट अभी चाइना में इन्फ्लोज आने स्टार्ट हुए। तो जापान में भी बहुत बड़ा फॉल हुआ था, जापान में भी अभी फ्रेश थोड़े से इन्फ्लोज आ रहे हैं ड्यू टू चेंज इन पॉलिसीज इन जापान आल्सो। सो दीज आर द ग्लोबल फैक्टर्स एंड टेक्निकल फैक्टर्स में मैंने आपको बता दिए थे कि क्या हुआ था। सो दिस वाज द ग्लोबल ओवरव्यू। अगर आपके पास अभी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, किसी सेक्टर के रिगार्डिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग। अगर नहीं है तो हम वी विल कंक्लूड आवर सेशन हियर एंड यू कैन आस्क डाउट मी इन मी पर्सन। Okay, I think nobody has any doubts, so we will end this session here. And it is good to see you all again. And stay motivated and stay. What I am saying, करंट टाइमिंग में आपको सिर्फ वेट करना होगा एंड वेट फॉर मार्केट रिवाइवल। जैसे कि मैंने हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री देख के आपको बताया कि जितना फास्ट फॉल आता है उतना ही फास्ट एक रिकवरी आती है। 80% नहीं तो 70% रिकवरी आ जाएगी। उस रिकवरी में आप थोड़े से कुछ अच्छे आपके जो प्रेशर वाले स्टॉक है उसको एग्जिट कर सकते हो एंड यू कैन मेक न्यू होल्डिंग लिस्ट। बट जब तक मार्केट एक स्विंग हाई नहीं ब्रेक करता तब तक आपको अवॉइड करना है अच्छे पोजीशन के साथ एंट्री लेना। ओके, ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट सून।